ਧੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਵਾਟ ਕਮਾਂਡੋ ਕਾਜਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸੀ, ਦਮਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੰਬਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਦੇ ਪਤੀ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਜਲ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੀਨਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਾਜਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਬਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਨੇ ਕਾਜਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਖਿਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਜਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਜਲ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। फिर 5 मिनट ही बाद फ़ोन आया, मेरी बहन की चीख मुझे सुनाई थी और 5 मिनट ही बाद फ़ोन आया उसका, मेरे जीजा का, कि मेरे हाथ में मर गई है और आ जाओ दिल्ली। किस बात को लेकर मारपीट? सर दहेज के लिए तो शुरुआत से इनसे घर पे ही होता था। इनके माँ बाप वगैरह भाई बहन सब ऐसे बोलते थे कि हमें तो ज़्यादा मिल रहा था, तुमने कम दिया, ये मिलना था वो मिलना था। ये तो थी, पर फिर शुरुआत में अंकुर ठीक था, फिर बाद में इसने भी ये चीज़ शुरू कर दी थी कि भाई ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो ये चीज़ आप लोग जब यहाँ पहुँचे तो किस स्थिति में आपको सुनते? वो ब्रेन डेड था उसका। डॉक्टरों ने सब मना कर दिया था कि इलाज होगा नहीं और कोई फायदा नहीं है, तो कहीं इलाज करवाना चाहते तो करवा लो। 1 मिनट समय ड्यूटी कमांडो थी, स्वाट कमांडो यहाँ पे थी, स्पेशल सेल में इनका वो थी पोस्टिंग स्वाट में, तो वहीं पे थे। और थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ जी, इन्होंने कई बार इस दोपहर उधर झगड़ा हुआ इनका और आपस में तो ठीक रहते थे पहले तो, लेकिन बाद में जो है इनका दहेज के ऊपर भी कुछ मामला गड़बड़ है। कौन दहेज के लिए प्रेशर डाल रहा था? इनके परिवार वाले, अंकुर के परिवार वाले। ठीक है, कब पता चला आपको? ये तो कई बार हुए जी। पहले हमने इनको बुलेट दी थी दहेज में, तो इन्होंने फिर क्या कि हमारे पास तो गाड़ी मिलने वाली थी हमारे लड़के को, तो लड़की ने गाड़ी भी दिला दी थी अपने पैसे से। हाँ जी। कब डेथ हुई है? फिर आपको कब जानकारी मिली थी ऐसे ऐसे बेटी पर हमला हुआ? क्या क्या पता चला? हमें जी 22
फोन 22 आया। तारीख को लड़के के पास फोन आया था। उसने मेरे को फिर फोन करके, मैं कहीं बाहर जा रहा था, तो ये हमसे पहले पहुंच गए, हम थोड़ा लेट पहुंचे। तो उसके बाद बेटी से कुछ बात हो पाई थी क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो बोल भी नहीं पाती थी, वो तो बोल भी नहीं क्या नाम है पाती। आपका? राकेश। जी, माता जी क्या पूरा मामला है, थोड़ा एक बार बताएं। आप ज्यादा आखिरी बार मेरे घर से ही आई थी वो 19-20 तारीख को। अच्छा। हाँ जी, 20 तारीख को ड्यूटी पे आई थी वो यहाँ पे। क्या बता रही थी, परेशान करते हैं घर तो वाले? उस दिन तो मेरे को कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन शुरू से ही बताती थी, सारा परिवार परेशान करता था। दहेज के लिए तो शुरू वाले दिन से ही बोल रहा हूँ। मैंने 20 लाख रुपए पैसे लगाए थे उसकी शादी में। होटल में मैरिज हॉल में गन्नौर में ही शादी की थी। बुलेट, गोल्ड सब कुछ दिया था, जो सामान होता है दहेज का सब कुछ। लेकिन उस दिन वो बोले हमने तिलक पे दिया था मैरिज हॉल में, बुलेट, सोने की रिंग, सोने की अंगूठी और 2100 रुपये तिलक करके देते हैं सगाई पे। भाई पैसे कितने भी दे दो, हमने उस टाइम पे 2100 रुपये बुलेट और सोने की रिंग और गोल्ड की चैन। काजल का बेटा भी है क्या? हाँ जी, 1.5 साल का। और उन्होंने अगले ही दिन बोला, क्या लिख गई उस दिन, भाई 1.25 लाख रुपए मिलते हैं हमारे यहाँ नौकरी लगे हुए। ये फर्स्ट डे की बात है। जिस दिन काजल को मारा उस दिन उसने निखिल को फोन भी किया था। हाँ जी, क्या कहा था? उसने सारी बात बताई अपने भाई को, जो दोस्त के साथ कर रहा। अच्छा, बोला कोई उसने शादी में उसने लोन लिया था शादी का। बोली 10 लाख का लोन मैंने पर्सनल लिया था, 3 लाख का लोन उसने दिल्ली तरफ की मिलता है बिना ब्याज का उनके डिपार्टमेंट की तरफ से। बोली 5 लाख रुपए मेरे से हमने ले लिया। वो मेरे बेटे को कमर में से कुछ चंद समय पहले बताया। जिस दिन उसने काजल पर अटैक किया, क्या इसके मामले में, इसके बारे में भी बताया उसने फोन करके आपके बेटे को? क्या बताया? वही, इसने मेरे से 5 लाख रुपए ले रखे थे और गाड़ी दिलवाई मैंने अपने पैसों से। मेरे पास एक पैसा नहीं छोड़ता है ये काजल ने बोला। तो इसने सोचा मेरी तो ये सारी पोल पट्टी पाड़ेगी अब, और निखिल अपने बहन को यहाँ पे मेरे पास छोड़ेगा, नहीं ले जाएगा। तब उसने इसके ऊपर अटैक किया। पीछे से जैसे मेरे बच्ची बात कर रही है, मेरे बच्ची ने, मेरे बेटे ने उसकी चीख भी सुनी सर, चीख भी सुनी। बोला वही मर गया मेरे से, आ जा तू इसको उसमें करवा, वो एम्बुलेंस बुलवा। मेरी लड़की को ही बोल रहा है। क्या चाहते हैं भाई आप दिल्ली पुलिस से, क्या मैं मांग तो रहे ये हैं? चाहती हूँ जी, मेरी बच्ची का जैसा हाल हुआ है ऐसा उस पूरे परिवार का होना चाहिए सर, पूरे परिवार का। मेरी बच्ची को इतना तंग करते थे, इतना टॉर्चर, बहुत ज्यादा। उससे पहले आप लोगों ने शिकायत नहीं की पुलिस में? हमने कई बार गया लड़का, लेकिन लड़की को सॉरी बोल देता था, बोलता था रियू की कसम मैं आगे नहीं करूंगा। मेरे लड़के को खुद यही बोलता था वो। निखिल लास्ट पर माफी मांग रहा हूँ, सॉरी भाई, आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, रियू की कसम। उसका 1.5 साल का बच्चा, उसको रियू बोलते हैं, उसकी कसम खाता था, इसलिए लड़का। कौन से ईयर में शादी की थी आपने? 23 नवंबर 2023। तो भी घर, ये तो लड़का अभी गिरफ्तार हो गया है, और भी लोगों सर सारे होने चाहिए मेरी बेटी के साथ जिसने वो करा है। बहुत ज्यादा करते थे ये, तो लड़के का तो बाद में ही पता चला, लेकिन वो सारा परिवार तो पहले दिन से ही करता था, मेरे को सारी बताती थी। यहाँ पर कब से किराए पे रह रहे थे वो वाला? किराए पे नहीं, खरीदा था यहाँ पे भी खरीद लिया था। तो कब से रह रहे थे यहाँ पे? पिछली सर्दियों में आए थे, आई थी 2 बार रहने के लिए, बच्चे को रखने के लिए। उसकी सास नहीं आती थी, भैया हम तो भैंस रखते, हम नहीं जा सकते। लड़के को कभी यहाँ पे आ रहती थी, पोटी भी नहीं होती थी उसको, अपने बेड पे भी नहीं करने देती थी। तो आपने अंकुर की फैमिली से बात नहीं करी थी जब वो कई बार तो उन्होंने क्या बोला था? वो लड़का उनसे मिलने नहीं देता था, हम घर पे जाते थे दोनों बेटा। एक बार छोटा बेटा आई थी, लड़का जब तक पहुंचा नहीं था बड़े वाला, बहुत बात की थी हमने, लेकिन इस तो उनकी फैमिली से बात नहीं करी? जो अंकुर के माता पिता से बात नहीं हुई थी? कमरे में उनको लॉक कर देता था, मिलने नहीं देता था, बोलता था मैं करूंगा बात, मैं करूंगा। अच्छा, परिवार वालों से बातचीत नहीं करने देता? करने ही नहीं देता था। पुलिस लेके गया लड़का साथ में, वहाँ हॉस्पिटल में जाने से पहले पुलिस बुला ली थी FIR वो। हाँ जी, इनकी लव टू अरेंज थी, 2-3 साल से रिलेशन में थे, कॉलेज में पढ़ते टाइम से। मैंने पहले इसको लड़की को नौकरी लगवाया, कमांडो थी दिल्ली पुलिस में। 2022 में ये नौकरी लगी। 2023 नवंबर में 23 नवंबर को इनकी शादी हुई हमारी रजामंदी से। शादी होने के बाद इनके घर वालों ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। गाड़ी नहीं लाई,
जबकि हमने 18-20 लाख रुपए लगाए शादी में, होटल में शादी करी इनकी। इसकी सिस्टर, इसका ससुर, सास, देवर, जेठ सब टॉर्चर करते थे, बताती थी लड़की। मेरी बेटी फिर ये दुखी होकर कह सुनकर मेरे लड़के ने इसको डांटा, अंकुर को, ये कह सुन के फ्लैट ले लिया, खरीद लिया इसने वहां पे। फिर भी लड़ाई करते थे इनको, हर शुक्रवार को बुला लेते थे, शनिवार इतवार की इसकी अंकुर की छुट्टी होती थी। हमारे दौरे तो 22 तारीख की रात में फोन आया था 9-10 बजे से लड़के के पास। मेरे को तो पता ही नहीं क्या बात हुई इनकी, क्या नहीं। भाई उसने अस्पताल में जाने के बाद बताई लड़के ने मेरे को, भाई ऐसे ऐसे बोल रहा था फोन पे, मैं तेरी बहन को मारने लग रहा हूँ, अरे अपनी रिकॉर्ड कर ले। मेरा नाम राकेश है। अंकल, आपकी बेटी की किसने हत्या की और क्यों की? मेरी बेटी की काजल की हत्या अंकुर ने की है, और वो भी दहेज के कारण। कई बार उसने तंग भी पहले भी किया था, और अब उसकी हत्या। आप कब पता लगा आपको उसने? मेरे को रात को 22 तारीख में 22 तारीख को पता लगा। तो पैसों के लिए मारपीट करते थे, दहेज के लिए वो? हाँ, पैसों के लिए मारपीट करते थे। उसने उसको बाइक तो हमने दे रखी थी, गाड़ी की मांग और कर रहे थे वो, बुलेट बाइक दे रखी थी। हाँ। दिल्ली पुलिस में थी आपकी बेटी? जी, दिल्ली पुलिस में थे। सर ये जो शुरू हुआ वो शादी के पहले से ही हो चुका था। जैसे उनके घर वाले थे, जो उनका प्यार था 5-6 साल का प्यार था आपस में, कॉलेज में पढ़ते थे तो ठीक है। उसके बाद शादी की बात आई, जैसे उससे पहले दोनों जॉब लग चुके थे। मेरी बहन दिल्ली पुलिस में लग चुकी थी, और ये जो लड़का जो है CCSL के थ्रू क्लर्क लग चुका था डिफेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो शादी पे बात आई, हम मना कर रहे थे अपनी बहन को कि नहीं करना है, हम नहीं करना। तो मेरी बहन अड़ गई इस चीज़ के लिए कि करूँगी तो उसी से शादी करूँगी, और उसके घर वाले भी नहीं मान रहे थे कि भाई, तो उसने भी लड़ भिड़ के करी। मतलब दोनों का प्यार था, अच्छा खासा था। पर उसके बाद क्या हुआ, जैसे शादी हो गई हमारी, तो शादी से पहले कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले इसके पिताजी आए हमारे यहाँ कि भाई हमारे लड़के की सरकारी जॉब लगी है, और हमारे लड़के के लिए गाड़ी वाले रिश्ते आ रहे हैं, और तुम क्या दोगे अब। तो हमें बहुत अटपटा लगा, मेरी मम्मी को बहुत अटपटा लगा, क्योंकि वही थी जो शादी में मेन थी। उन्होंने ऊपर होके सबसे शादी इसकी तय करी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई निकला ऐसे ऐसे बात है, और मेरा मन नहीं करा शादी करने में। तो मैंने बोला हाँ चल। फिर काजल से बात करी, काजल को भी बताई ये चीज़ें, तो काजल बोली कि भाई मैं तो करूँगी तो इसी से करूँगी। तो ऐसे ऐसे करके शादी हो गई। कब शादी हुई आपकी सिस्टर की? शादी हुई 23 नवंबर 2023 को। तो जो आपकी सिस्टर दिल्ली पुलिस में थी? सिस्टर दिल्ली पुलिस में थी, कमांडो के टाइम पे, कमांडो। तो कब हत्या हुई, कब आपकी बातचीत हुई तुमसे, कब से मारपीट कर रहे थे? सर मारपीट पिछले 2025 में, जैसे अंकुर ने, मेरे जीजा ने सिस्टर पे हाथ उठाया। ये तब दिल्ली वाले फ्लैट पे थे, दोनों ही अकेले ही थे, हमारा भांजा भी था। तो मैं गया उनके पास, तो वो उसी गुस्से में ही था, ठीक है। पर थोड़ी देर बाद जैसे समझने के लिए मैं बोला अपनी बहन को कि चल तू घर लेके चलता हूँ तेरे को। तो फिर उसने माफ़ी मांगी मेरी बहन से, उसके पैरों वैरों में पड़ा, तो बोला लड़के की कसम खाई मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा। तो बहन भी ये बोली कि भाई कोई बात नहीं, चलो मान गए। तो पैसों की डिमांड करते थे वो आपकी सिस्टर से और गाड़ी की? पैसों की डिमांड तो सर ऐसे है, जैसे शादी के टाइम पे ही हमारी बात हुई सिस्टर से कि सिस्टर 10 लाख रुपए का लोन लेगी तब शादी करेंगे। गाड़ी भी मांगी थी उन्होंने आपसे? गाड़ी मांगी थी, मैंने बताया ना, वो अंकल जी आए थे, उसके ससुर आए थे। और अंकल जी एक चीज़ और बताओ, जब आपकी बहन के साथ मारपीट हुई तो उससे पहले कोई बातचीत हुई या उस दिन कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, उस दिन हुई। उनका फ़ोन आया, मेरी जीजा का फ़ोन आया। वो बोले कि भाई हमारी लड़ाई हो रखी है और अपनी बहन को समझा लो। मैंने बोला कि मैं समझाता हूँ। तो मेरी सिस्टर ने फ़ोन लिया, उससे बात हुई, तो उसने बताया कि भाई हमारा ये ऐसे था कि भी जो शादी के टाइम पे 10 लाख रुपए का लोन लेना था ना मुझे, तो मैंने 5 लाख का लिया था। मैंने बोला हाँ 5 लाख का लिया था। जीजा का फ़ोन आया, तो बहन बात कर रही थी मुझसे, तो उसने जीजा ने पीछे से गाली दी मेरी बहन को, और बोला कि अभी तो रुको, अभी बताता हूँ। फिर उसने उससे फ़ोन ले लिया, और फिर मुझसे बोला मेरे जीजा ने कि अब तू रिकॉर्ड कर, ठीक है, तेरी पुलिस एविडेंस के लिए काम आएगी ये चीज़, और अब मैं इसको मार रहा हूँ। फिर
मेरी बहन की चीखने की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। उसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद ही फ़ोन आता है जीजा का। जीजा बोलते हैं मेरे से मर गई है, अब दिल्ली आ जाओ। कितने बहन भाइयों को आप हम लोग? 3 बहन भाई हैं सर। मैं, मेरा भाई छोटा है, सबसे छोटा मेरा भाई है, बीच की हमारी बहन थी। हम 3 बहन भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ।